How can a person employed in the hospitality industry can achieve a growth intellectually or socially? How can a person employed in the hospitality industry grow? Can achieve a growth intellectually and socially. So how to grow intellectually and socially working in the hospitality industry? Yes. Socially, it's very easy, I'll tell you that. Right? Just say hello to more people. Right? Co-workers, be the first one to say hello. How many of you, when you meet a stranger, you are the first one to say hello? Good, you should be that. Then you're in the right industry. Don't wait for the other person to say hi. You're working, and that's how you'll develop these important skills, right? Say hello, develop personal contacts, know the preferences. So how to grow socially in terms of developing a rich network? There are two categories we can talk about. One is people you work with. The other is the customers that you serve. Okay, customers that you serve, you can make good contacts by knowing their preferences, by treating them well, treating them with respect, right? For example, I get a lot of emails from youngsters. Sir, will you come to, not even sir, dear Simarjeet. And I'm like, you are 21 years old. I have not given you the privilege to call me by my first name, right? A lot of time I have to tell them, it's Mr. Singh, right? और अगर हिंदी में प्रेफर करें तो इट्स सिमरजीत जी. आप बेटा अभी 21 साल के हैं, आपको मैंने ये प्रिविलेज नहीं दी है. जिस दिन हम दोस्त बन जाएंगे आपको ये प्रिविलेज मिल जाएगी. बस सिंपल लाइक दैट. हम वेस्टर्नाइज बनने के चक्कर में भूल गए हैं कि हम किस कल्चर में रहते हैं, राइट? इट वोंट वर्क, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कल्चर यू आर पार्ट ऑफ and how you need to adapt to that. Just one simple example. So, but then keep the basic etiquette in mind, but reach out and connect with more people by helping other people, your colleagues. Now, by helping other people does not mean that you're always being used by other people, but you are there as a troubleshooter, right? If you want to develop good network with co-workers, troubleshooter bano, problem solver bano. You'll be in high demand. You'll get promotions. Things will change a lot. You'll climb up the ladder very, very quickly. People will become friends with you. And take out the time to spend time outside of work also. It's not always about work. Get to know the person on a personal basis as well, people you work with, okay? About bosses, I'll tell you something. A lot of youngsters make this mistake. First jobs especially. There is a difference between being a friend, okay, and being friendly. Do you know the difference? A lot of young people make this mistake here. My boss is friendly with me, so I thought he's my friend. The day you make this mistake, the boss will tell you, listen dear, I am friendly, but I am not your friend. Okay? So ये गलती मत करना. Youngsters कर जाते हैं first job में, खास करके जब उनको experience नहीं होता organizational dynamics का. So the boss can be friendly and nice to you, does not mean the boss is your friend. Okay, keep some rules and basic courtesies that you extend to any senior person at home. Just basic courtesies in mind, you cannot go wrong. Unless you're working in the armed forces or some other place जिनका अपना decorum होता है, of course you have to follow that. But in most of the places, जो courtesies, जो चीजें आप घर में किसी बड़े को या किसी और को देते हैं, उस ढंग से चलेंगे, you cannot go wrong. With fellow workers, try not to put somebody down, and distribute credit if you can. You want to be a good team player, क्रेडिट बांट लो यार. कई लोगों को बड़ी ये डेवलप कर लेते हैं. 8-6 बंदों को साथ में लगाया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो सबसे वो 5 को बताया नहीं, बॉस के पास पहुंच गए, सर वो मैंने ना करवा दिया सर, आपका काम जो था ना हो गया. वो 5 बंदे कहाँ गए यार? और खास करके अगर आपसे जूनियर है ना, उसको जरूर लेके जाओ सर. वो जो गेस्ट से एप्रिसिएशन लेटर आई थी ना, वो ये हाउसकीपिंग का फ्लोर अटेंडेंट था, वो इसका काम बड़ा अच्छा था सर, वो इसको मेंशन किया उन्होंने, साथ लेके जाओ. क्यों खा रहे हो तुम सारा क्रेडिट उसका? जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या होगा उसमें? एक तो वो बंदा मोटिवेटेड फील करेगा, इन्वॉल्व फील करेगा, व्हाट विल डू, और आपको आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और आपको आदत पड़ जाएगी. अच्छी आदत है ये. पेट खराब हो जाएगा ज्यादा एप्रिसिएशन खा खा के, सारे खुद खा लो. बांटो यार इसको. गुड टीम प्लेयर यही है. हाँ, गुड लीडर ये है कि समथिंग गोज रॉन्ग, something goes right, it's very hard to do. The theory में बहुत अच्छा है, very hard to do. But if dream तो होना चाहिए ना.
स्टैंडर्ड का एस्पिरेशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, आई वांट टू बी अ लीडर लाइक दिस, एंड वी नीड बेटर लीडर्स। किसने पहले पूछा था होटल इंडस्ट्री में वर्क लाइफ बैलेंस ठीक करना है, वर्क एनवायरमेंट ठीक करना है, आप लोग ही करोगे। इसलिए सिंपल सा एक काम करना। फर्स्ट जॉब कब शुरू होनी है आपकी? जुलाई, इन 6 months। प्लीज डू दिस। एक ना डायरी लगा लेना, ठीक है? ये करोगे सब ये लोग? एक डायरी लगा लेना, उसमें लगाना, उसको लिख देना PhD ऑफ लीडरशिप। क्या है? जब वो डायरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप मेरी नजरों में आप PhD हो जाओगे। उस डायरी में आपने क्या लिखना है? थिंग्स विच अदर्स डिड टू मी विच आई डिड नॉट लाइक, लिख लो। थिंग्स विच अदर्स डिड टू मी दैट आई डिड नॉट लाइक, लिख लो। मेरे को ब्रेक्स नहीं मिलती थी, मेरे काम की वैल्यू नहीं थी, को गालियां देता था बॉस, हिंदी पंजाबी में और कौन कौन सी भाषाओं में, जो भी था लिख लो। ठीक है जी? कौन सी लिस्ट है ये? PhD ऑफ लीडरशिप पार्ट 1। व्हाट इज अ पार्ट 1? थिंग्स विच अदर्स डिड टू मी विच आई डिड नॉट। मेरे साथ वो व्यवहार जो दूसरों ने किया जो मुझे पसंद नहीं आया। दूसरा सेक्शन इसका लिख लेना, सेकंड पार्ट इस डायरी का, थिंग्स विच अदर्स डिड फॉर मी विच आई लव्ड। मेरा बर्थडे था, मेरी टीम को पता था और उन्होंने मेरे को केक खिलाया, मेरे मुंह पे केक लगाया, व्हाटएवर, आई डोंट नो। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे बॉस ने अंडरस्टैंड किया, आई डोंट नो। ठीक है? अब क्या करना है, इस डायरी को संभाल के रख लेना। किस दिन VP बनोगे बेटा, GM बनोगे, CEO बनोगे, बेकरी ओनर बनोगे, शेफ बनोगे, हो सकता है कोई CM बन जाए, कोई MP बन जाए, हैं जी? हाँ, कुछ भी हो सकता है। आसपास जरा ध्यान से सबकी इज्जत किया करो। हाँ, एक बार देख लो आसपास इधर उधर। कल को यही लोगों को आप फोन करने वाले हो, भाई वो तू बैंगलोर में उस होटल का मैनेजर है ना, मेरे वो फैमिली वाले आ रहे थे स्टे करने, तेरे को डिस्काउंट दिलवा सकता है? बोलेगा अच्छा, तो वही है ना क्लास में मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता था। सो ये आसपास देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, ये चेहरे अच्छे से देख लो। 6 महीने रह गए ना ग्रेजुएशन में, ये चेहरे अच्छे से देख लो। जैसे ये रॉकेट शुरू होगा ना, दिवाली भी आने वाली भी, ऐसे ऐसे एक बार तीली लगनी है ना, ये आपके रॉकेट जाना है, उन्हें पता नहीं कहां कहां पहुंचना। और जिनको आप सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे ना क्लास में, वो पता नहीं कहां कहां पहुंचेंगे। सो ध्यान से जरा, ह्यूमिलिटी से। तो कहां पर थे हम? PhD ऑफ लीडरशिप, थिंग्स दैट others did to me that I loved and things that others did to me that I hated। जब लीडर बन जाओगे ना, एक सिंपल सा काम कर लेना। मैं ज्यादा बड़ा कोई वो नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं दे रहा, एक सिंपल सा काम कर लेना। जो चीजें जिनसे मैं नफरत करता हूं, जो मुझे बुरी लगी, मैं किसी से नहीं करूंगा, और जो चीजें मुझे अच्छी लगी मैं वो करूंगा या करूंगी। सिंपल सिंपल, दैट्स हाउ यू चेंज द वर्ल्ड, राइट? यू वांट टू बी अ बेटर पेरेंट, व्हेन यू हैव किड्स बी अ बेटर पेरेंट। मम्मी पापा भी ये कहते होंगे ना, जब अपने बच्चे होंगे तो पता लगेगा, राइट? एक्चुअली में सही कहते हैं। बहुत दिमाग खराब है, बच्चे ऐसी चीज है जब नहीं बोलते तब पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है। बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। जब बोलना शुरू करता है तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है, चुप नहीं कर रहा, चुप नहीं कर रहा, चुप नहीं कर रहा। ठीक है? तो जब अच्छे पेरेंट बनना तो भी ये सिंपल रूल है कि यार मेरे को ये थका, में ये कमियां थी, कोई बात नहीं, आप प्रोवाइड कर लो अपनी जनरेशन को, पीछे को कोस के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनके पास जो बेस्ट था, जो उन्होंने अलाउ किया, जो भी स्थिति थी उन्होंने बेस्ट किया। तुम्हारी बारी है, तुम कर लो। सेम एज लीडरशिप। मेरे साथ ये गलत हुआ, कुछ लोग ना पूरी कहानी बना के बैठ जाते हैं इसकी, दुख भरी कहानी। इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनका क्लब है एक, हाँ, पूरा नेशनल लेवल का क्लब है, इनको कहते हैं ग्लोबल कंप्लेनर्स एसोसिएशन। हाँ, इनको कुछ भी दे लो, इनको फूलों के उसमें रोज गार्डन ले जाओ, ये बोलोगे कितने कांटे हैं यहाँ पर। और भाई तेरे को फूल दिखाने लाते, कितने कांटे हैं यहाँ पर, है जी? तो ये कंप्लेनर्स क्लब है। और पता क्या है, इनकी एक दूसरे से मोहब्बत बहुत होती है इनकी, मतलब दे लव ईच अदर। एक कंप्लेनर को दूसरा कंप्लेनर मिलता है ना, कहता सच्ची तेरे को ही लगता है मैंने ना सबसे बड़ी गलती की होटल मैनेजमेंट में आके, मेरे को ये लगता है। और ये दोनों लोग आपको, ये इनका ग्रुप मिलेगा आपको इकट्ठा, और इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, और फिर ये प्रूफ भी ढूंढते हैं। तेरे को बताया था ना मैंने कि ऐसे है, वो प्रूफ ढूंढ के एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं, और बाकी लोग थम्स अप भी करते हैं, यस। कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा इसमें। इनमें डेयर कोई बंदा बोले कि नहीं होटल मैनेजमेंट से तू कुछ कर सकता है, बोल के दिखाओ,
वो तेरे को पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहता है, वो सिमरती सिंह की बात कर रहा है, वो तो लक्की था, उसका तो लक फैक्टर, वो फॉर अब्रॉड गया था इसलिए हो गया। उसने जो 16 साल दिए अपनी जिंदगी को, वो एक फ्लैट से ऊपर से नीचे, घर से ऑफिस तक, घर से ऑफिस तक, बिना, वो जो 16 साल दिए वो तो किसी को नजर नहीं आएंगे, वो थोड़ा नजर आएंगे, मैं तो लक नजर आएगा। खास करके जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते ना, जब वो कामयाब हो जाते हैं हम कहते हैं लकी था। राइट, सो बीन एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। कंप्लेनर नहीं बनना है आपको, बी ऑप्टिमिस्ट and just keep this simple journal. You want to be a good leader, start today. Think experiences that you loved, do it to other people. Experiences that you hated, don't do it to other people. That's a pretty good place to start. Cannot go wrong with it. And stop complaining about the past because you have no power to change it. Instead, heal yourself from the past. I request all of you to do this. Meditation आती है नहीं आती है, 10 मिनट आंखें बंद करके ना, जो आपको लगता है ना मेरे अतीत के घाव हैं, whatever has hurt me in the past, उनको heal कर दो, लोगों को फॉरगिव कर दो, उस एक्सपीरियंस से सीखो क्या सीखना है, मूव ऑन। दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट। सो सवाल कहां से शुरू हुआ था, कहां कहां चला गया, मैं बहुत खुश हूं इस चीज से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कशन लाइक दिस, नो, इट गोज इन टू ऑल सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस। आई होप यू गेन सम वैल्यू फ्रॉम इट। थैंक यू।